ओके तो आज हम लोग बी एफ एस एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड definition of the graph and the different representation of the graph into the memory. We also discussed something regarding BFS, but we will do it again. So first BFS, let's see what BFS does. As the name suggests, it is a breadth first search. Algorithm. Okay, so this is actually a traversal algorithm, and you can do the search also using this algorithm. If you want to find out a node, you can do that. So first thing is that why it is called breadth first search. So answer to this question is that this algorithm always traverse the tree from breadth wise. So by the breadth wise means let's suppose there is a vertex which is called S, and S is the source vertex. So whenever you will start search, you will always have a source vertex given to you from where your search will start. Sorry, this will not be there. One thing. Okay, so there will be a source vertex that you will be given. Now what you will do, you will always explore the front of this vertex. So by the front means all the vertices that are adjacent to X. So let's say U, V and W are there. So these three vertices are adjacent, and you may have X also, but X is not adjacent to S. You may have uh, here Y. Okay, so Y and X are not adjacent to S, so they will not be explored. So first, only the neighbors of S will be explored. So the neighbors of X are these three vertices U, V, W. So your algorithm will traverse all these three vertex. So that are, you can see that they are on at length 1. So let me write 1. All these vertices are at length 1. So length 1 means they are one edge एट द वन एज डिस्टेंस. एक एज की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो वर्टाइसेस के बीच में. एस से यू, एस से बी, एस से डब्ल्यू. सो ऑल थ्री वर्टाइसेस आर एट वन एज अपार्ट. Okay, so they are at the distance of 1 from your source vertex. Now once these three vertex have been visited, then it will process all these vertices that are at the two distance from S. So two distance means neighbors of each of these vertices. So U ka neighbor, you have to visit neighbor of U, all the neighbors of U, then all the neighbors of V. Here in this case neighbors of V are 0, and all the neighbors of W. Okay, that means all the vertices at the distance of 2. Okay, so that means in each step it will uh, let's say it visits all the vertices of at all the vertices that are at the distance k from S. But जब तक कि k distance पर जो vertices हैं, all vertices are not visited, it will not visit any vertex that is at the distance k plus 1 from S. That is the meaning of breadth first search. Okay, now let's see how the algorithm works. So let me first tell you the idea, what the idea algorithm follows. First, this algorithm initially, actually this algorithm uses the concept of colors. So it uses three colors. Three colors are used to mark the status of all the vertices. So initially, we will assume that all the vertices are of white color. So white color. So if a vertex is having white color, it means it has not been traversed or detected. It has not been detected actually. So the vertex that are not detected, the vertex
or sorry, vertices, we have to write vertices that are not detected. So white color will mark that, the white color represent that the vertices with white color are not detected. Then this algorithm will use a gray color. So gray color marks that these vertices has been detected. Vertices has been detected but not visited. Sorry, but not visited, or you can say processed. Okay. So gray color will mark the event that these vertices has been detected but they are not visited. And black color of a vertex will indicate that the vertex has been detected and also visited. Vertex is visited. I am writing that directly visited. Okay, I am not writing detected because without detection visit is not possible. So these three colors will be used by algorithm. Okay. Now the algorithm will also have some other parameters for each of the vertex. It will use to uh, maintain or maintain or account for the distance of a vertex. So the distance of a vertex from the source will be represented by the parameter v dot d. So suppose v dot d is equal to 2. It means vertex v is at distance 2 from the source. Okay. Then since I have already told you that this vertex creates a BFS tree. BFS tree. It will return you a BFS tree that have S as root, as its roots. Sorry, root. Okay, so this tree need to be discovered or need to be prepared by this algorithm. So to mark the vertices or to keep track of this tree, this algorithm uses one more parameter with for each vertex, that is v dot pi. So v dot pi will represent which node is the parent of v in that tree. Okay, if you want to maintain the tree, so you need to remember which was the parent of a particular vertex. So if suppose that v dot pi is equal to u, so that means parent of v was u. That means that means the algorithm has detected vertex b when it was at u. That means v was adjacent to u. Okay. So these are the informations that algorithm will maintain. If you go into you study the same algorithm in other book, that it may not be that they maintain these two parameters. Okay, but this book this book that discussing algorithm that maintains this. So we will also go study that. So let's see the algorithm first. Now you can see that the algorithm BFS is there. So let me tell you what the each part of this algorithm is doing. So so सबसे पहले first what you have to do, you need to go and enter into the loop. Your algorithm enter into the loop and it records or it colors all the vertices into white. Okay, except S. Okay, so for each vertex u belongs to g dot b. So g dot b means you know that g is the graph and dot b means graph have two tuples v and e. So g dot b means we are talking about set of vertices for g. So g में जितने भी vertices हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं. तो हम for every vertex that is in set v minus s को छोड़ करके what we are doing, we are doing these three for all of the vertices. So what we are doing, u dot color equal to white.
So what we are doing first, we are marking the color of all the vertices into white. ओके सो ये आप ये मत समझिएगा कि हमारे पास जो ग्राफ है हम उनके वर्टेक्स को सबको कलर कर दे रहे हैं. सो द एल्गोरिथम इज मेंटेनिंग इट लॉजिकली. ओके सो एल्गोरिथम मेमोरी में मेंटेन कर रही है ये सब चीज़. सो जो भी वर्टेक्स है तो उसका कलर वाइट कर दिया. ओके और आपको मालूम है कि वर्टेक्स के पैरामीटर्स कैसे स्टोर कर सकते हो आप. वर्टेक्स के पैरामीटर आप जो नोड है वहीं पर स्टोर कर सकते हो. एडजेस एंड योर एल्गोरिथम इज एज्यूमिंग दैट वी आर हैविंग एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ. ओके सो सबसे पहले आपने जितनी भी वर्टाइसेस थी फॉर एवरी वर्टाइस यू मार्क्ड इट्स कलर वाइट. सो आपकी एल्गोरिथम ने सारी वर्टाइसेस का कलर वाइट कर दिया. देन आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, डिस्टेंस भी रिकॉर्ड करनी है. तो इनिशियली जब इनिशियलाइजेशन हो रहा है एल्गोरिथम का उस समय आपको एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है बिकॉज यू हैव नॉट डिटेक्टेड दोज वर्टाइसेस. सो वी विल मार्क दैट यू डॉट डी इज इनफाइनाइट. सो इनिशियली सारी वर्टाइसेस जो है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. So you are you are writing a number here that is representing that all vertices are not detected till now. So एक larger number हम पुट कर रहे हैं जो कि जिसकी वैल्यू d की all possible वैल्यू से जब वर्टेक्स डिटेक्ट हो जाएंगे उनसे सबसे ज़्यादा हो गए. एंड u डॉट पाई इक्वल टू नील. सो u डॉट पाई का मतलब वर्टेक्स u का पेरेंट अभी नील है. ठीक है बिकॉज वी हैव नॉट डिटेक्टेड एनी वर्टेक्स. तो किस वर्टेक्स को कहाँ से डिटेक्ट किया है हमने वो हमें नहीं पता है. सो सबको हमने नील कर दिया. सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन स्टेप दैट योर एल्गोरिथम डज. देन what we are doing because we know that we are given the source vertex x. So आपको आप देख सकते हैं you have your algorithm have two parameters graph g and s. So graph g means we are giving the pointer or the handle of the adjacency list to the algorithm. g पास कर रहे हैं. g का मतलब पूरी ग्राफ नहीं पास कर रहे हैं. हम ग्राफ कहाँ स्टोर्ड है वो लोकेशन दे रहे हैं जहाँ से एडजेसेंट ट्री को रीड किया जा सकता है. ओके एंड s we are also telling from where the search will start. So s is that vertex. So g dot b में से कोई एक vertex है इस सेट में से that is your source vertex जहाँ से हम सर्च स्टार्ट करेंगे. So initially हमारे पास s है तो सबसे पहले हम s से ही शुरू करेंगे. तो जब हमने s से शुरू कर रहे हैं that means we will assume that s have detected. हम मान लेंगे हम s से शुरू कर रहे हैं तो s से शुरू तभी कर पाएंगे जब हमको s मिल गया है. So s have detected so that means we will mark its color gray. So s dot color equal to gray. So algorithm marks that s is detected, so its color becomes gray. Then and s dot d s की s से distance 0. Distance of s from s is 0. Okay, and s dot pi nil क्योंकि s is the root, so its parent will be nil. Then what we are having here, we are having a q. q is a data structure. आपको मालूम है एवरीबडी नोज क्यू. एंड क्यू में दो ऑपरेशंस हैं. एक होता है इंसर्ट करना जिससे हम इन क्यू ऑपरेशन बोलेंगे. एंड एक है क्यू से डेटा एक्सट्रैक्ट करना जिसे हम डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं. सो इन क्यू एंड डी क्यू आर द ऑपरेशन ऑफ द क्यू. ओके एंड क्यू में हम इंसर्शन और डिलीशन जो है कॉन्स्टेंट टाइम में कर पाते हैं. सो यू शुड रिमेंबर दैट. ओके सो इनिशियली वी क्रिएटेड एन एम्प्टी क्यू. क्यू इक्वल टू 5. सबसे पहले हमने एक एम्प्टी क्यू बनाया. नाउ इस क्यू में हम सोर्स को इंसर्ट कर देते हैं. सो इन क्यू क्यू एस मीन्स वी आर इंसर्टिंग सोर्स वर्टेक्स इनटू योर क्यू कैपिटल क्यू. दिस इज क्यू. सो आपने एस को क्यू में इंसर्ट कर दिया. नाउ यू विल लूप अंटिल दिस क्यू इज एम्प्टी. जब तक ये क्यू खाली नहीं हो जाती है तब तक हम एक लूप में एंटर कर जाते हैं. ओके सो इस लूप से बाहर तब आएंगे जब आपका क्यू एम्प्टी हो जाएगा. तो हमने जानबूझ के क्यू में पहले सोर्स वर्टेक्स को रख दिया है एंड देन अब हम क्यू को प्रोसेस करना शुरू कर रहे हैं लूप में. जब ये क्यू एम्प्टी हो जाएगा तभी योर एल्गोरिथम विल स्टॉप. ओके सो सबसे पहले डी क्यू करना है आपको. सो डी क्यू का मतलब क्यू के फ्रंट में जो कुछ भी होगा वो निकल के आएगा. सो ऑब्वियसली हमने एस रखा है इनिशियली पहले, तो एस आ जाएगा. सो यू इज अ वेरिएबल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्टेक्स विच हैज बीन extracted or dequeued from the queue. So initially s होगा इसमें. so आपने s को निकाल करके u में रख लिया. so u is representing s for initially first round में. then what you are doing for each v
बिलोंग्स टू जी डॉट ADJV। सो ADJV का ADJU सॉरी ADJU का मतलब है कि ऑल वर्टाइसेस दैट आर एडजेसेंट टू U। adjacent to U means we are talking about the adjacency list। जो adjacency लिस्ट है उसमें U की जितनी भी adjacent vertices हैं, that means जो एक लिंक लिस्ट में है ना, that means we are talking about this adjacency लिस्ट, ये वाली adjacency लिस्ट। तो 3 के adjacency, जैसे हमने लिखा ADJ3, सो ADJ3 का मतलब हो गया 6 5, तो उसकी जो 3 के adjacent जो vertices हैं उस vertices की बात कर रहे हैं, they are in list, ओके, लिंक लिस्ट में है, तो हम इनकी वर्टेक्स को रीड कर रहे हैं। सो फॉर ईच वर्टेक्स, सो दैट मीन्स वी आर रनिंग ए लूप फॉर ईच वर्टेक्स इन दिस लिस्ट, ठीक है, जितनी भी हो। इस एग्जाम्पल के केस में 2 ही है लेंथ इसकी, बट अदर के केस में ज़्यादा भी हो सकता है। सो फॉर ईच वर्टेक्स व्हाट वी आर डूइंग, फॉर ईच वी बिलोंग्स टू दिस सेट इफ वी डॉट कलर इक्वल टू वाइट। सो अब कह रहे हैं कि अगर ये वर्टेक्स जो है हमें जो लिंक लिस्ट में मिल रही है उसका कलर वाइट है, दैट मीन्स what it indicates कि this vertex has not been detected before this time, अब डिटेक्ट हुई है, ओके। सो अगर किसी वर्टेक्स का कलर वाइट है दैट मीन्स इट हैव नॉट डिटेक्टेड प्रीवियसली, नाउ इट हैज बीन डिटेक्टेड। आपने वर्टेक्स को देखा और उसका कलर मैच किया, सो आपने देखा कि वर्टेक्स का कलर तो वाइट है, दैट मीन्स ये पहले डिटेक्ट नहीं हुए, अब अभी डिटेक्ट हुए हैं। So now what we will do, now this vertex has been detected, so we will should mark that this vertex has been detected. So that mark is put using making its color gray. So v dot color को हमने चेंज करके ग्रे कर दिया, ओके। सो नाउ v जो वर्टेक्स जो अभी अभी डिटेक्ट हुई है उसका कलर हो गया ग्रे, एंड उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, ओबियसली सोर्स की जो डिस्टेंस थी जिस वर्टेक्स से हमने इसे डिटेक्ट किया है, तो अभी वो वर्टेक्स कौन है, u से हमने डिटेक्ट किया है, तो u की जो डिस्टेंस है उसमें एक ज़्यादा और कर देंगे हम, +1 कर देंगे, क्योंकि u की डिस्टेंस अगर मान लीजिए s से 2 थी तो इसकी डिस्टेंस 3 होगी, है ना, u का नेबर है ये। सो u डॉट डी इक्वल टू 1 हमने कर दिया। सो v की जो भी डिस्टेंस है वो हो गई u की डिस्टेंस से एक ज़्यादा, इसके u क्या है, v का पेरेंट है। सो अब ऑब्वियसली v डॉट पाई इक्वल टू हम कर देंगे u। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमने वर्टेक्स v को u से डिटेक्ट किया, सो u विल बी मार्क्ड एज द पेरेंट, ओके। एंड देन u को अभी प्रोसेस नहीं किया गया है, सो हमें प्रोसेसिंग के लिए हम इसे क्यू में एंटर करा देते हैं, ओके। सो ये क्यू में चला गया। तो आप देखेंगे अगर इनिशियल राउंड में अगर हम इसे ट्रेस करें इस एल्गोरिथम को, फंक्शनिंग को, तो u के नेबर्स जो भी होंगे वो इस क्यू में आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगी, u के जितने भी नेबर्स हैं, इनिशियली जो s है आपकी वर्टेक्स, सो फर्स्ट टाइम तो s डिटेक्ट होगी, तो s के जितने भी नेबर्स हैं ये लूप क्या करेगा, उनको क्यू में इंसर्ट कर देगा, सबका कलर क्या कर देगा, ग्रे कर देगा वाइट से, और उनकी डिस्टेंस +1 हो जाएगी। तो u की डिस्टेंस s जो u इक्वल टू s है शुरू में, तो वो 0 थी, तो अब सबकी डिस्टेंस 1 1 1 1 हो जाएगी, और सब के सब क्यू में चले जाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता, ये जो लिस्ट है लिस्ट में डिपेंड करेगा कि कौन सा किस ऑर्डर में जाएगा। जैसे 6 पहले मिलेगा तो क्यू में 6 पहले जाएगा, फिर 5 जाएगा, तो उसी ऑर्डर में ये फिर प्रोसेस भी होंगे जिस ऑर्डर में क्यू में जाएंगे, ओके। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ओबियसली इस लूप में एंटर कर रोटेट करते रहेंगे, और रूट के में जब ये लाइन पूरी हो जाएगी, मतलब इस वर्टेक्स के नेबर्स सारे के सारे क्यू में चले गए, तो हम वापस रिपीट करेंगे और देखेंगे क्या क्यू एम्प्टी है। सो यू विल सी दैट कि अभी तो हमने नेबर्स एंटर कराए हैं, तो एम्प्टी नहीं होगी, तो हम जो भी क्यू के फ्रंट में नोड होगा उसे निकाल लेंगे, और फिर उसके नेबर्स को अगर आपको कोई ऐसा नेबर मिलता है जिसका कलर वाइट है तो उसका ग्रे करके उसकी डिस्टेंस और पेरेंट सेट करके फिर से रिपीट करते रहेंगे। सो वी विल रिपीट दिस प्रोसेस, और जैसे ही सारे नेबर्स जो ना क्यू में चले जाते हैं, ये हमारा काम खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम यू के कलर को ब्लैक कर देंगे। दैट मीन्स हमने यू को प्रोसेस किया और उसका कलर मार्क कर दिया ग्रे। सो एक लाइन यहाँ पर ऐड और कर सकते हो, प्रोसेस यू, ठीक है, ऑथर हैव नॉट राइटेड देयर रिटन देयर, बट चूंकि ये ट्रैवर्स एल्गोरिथम है, सो इट विल बी गुड आइडिया टू मार्क दैट यू कलर ब्लैक करने से पहले हम इसे प्रोसेस कर लेंगे। सो यू कैन ऐड वन स्टेटमेंट यू प्रोसेस यू, ठीक है। सो प्रोसेस यू का मतलब यू के साथ आपको जो भी प्रोसेसिंग करनी है यू कैन डू दैट, एंड देन अब चूंकि यू प्रोसेस हो चुका है, तो यू प्रोसेस कब होगा, जब यू के सारे नेबर्स क्यू में चले गए हैं और यू प्रोसेस हो गया है। अब हम इसको मार्क कर सकते हैं कलर ब्लैक से। सो
सो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स दैट कि वर्टेक्स हैज बीन प्रोसेस्ड। ध्यान रखना है कि कोई भी वर्टेक्स जिसका कलर ब्लैक है या ग्रे है वो क्यू में एंटर नहीं करती है, ध्यान रखना। आप देख रहे होंगे ये लाइन में कि ओनली दोज वर्टेक्स दैट हैव वाइट कलर विल बी इनटू द क्यू, एंड क्यू के अंदर जो वर्टाइसेस होती हैं उनका सबका कलर होता है ग्रे। ओके, आप देख रहे हैं हमने वर्टेक्स को कलर करने से पहले, सॉरी एंटर कराने से पहले, क्यू में इंसर्ट करने से पहले ग्रे कर देते हैं। सो ऑल दोज वर्टाइसेस दैट आर इनटू द क्यू विल बी मार्क्ड एज ग्रे, और जो प्रोसेस हो चुकी हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। और सो क्यू में ना तो कोई ब्लैक कलर की वर्टेक्स एंटर करती है, ओके, ना ही कोई वर्टेक्स जो पहले से ग्रे है वो क्यू में जाएगी। ओके, कौन सी वर्टेक्स क्यू में जाती है? जो अभी वाइट है, हम उसे ग्रे करके एंटर करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो डिटेक्ट होने वाइट इस टाइम पर जब हम चेक कर रहे थे उसका कलर ऑलरेडी ग्रे है, इसका मतलब वो तो पहले से ही क्यू में है, तो हम उसे एंटर नहीं कराएंगे अगर हम, ठीक है। सो दिस इज योर एल्गोरिथम। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। So this is a graph. You can see in point A you have a graph. So that vertex names are written there. R is a one vertex, S is one vertex, T is also one vertex, U is also one vertex, V W X Y Z X Y, sorry. So this graph having 8 vertices. Okay. So initially what your algorithm will do, initialization करेंगे. So or let's take our own example. We will do our own example. So let's suppose we have a graph like that. Here it is A, then B, then let's say this is C, we have D, and then we have E, and let's say like that, and then we have Z, and let's say this vertex is K. So suppose this is the graph G that you are given. And let's assume A is the source vertex. A is the source vertex. Sorry, vertex. So first let's create the adjacency list for this graph. So adjacency list में आपके पास एक हैश टेबल होगी, हैश टेबल में नोड्स होंगे. सो A, then B, then C, then we have vertex D, vertex E, then Z, then K. एडजेसेंट लिस्ट बनाना है हमें. सो ए के एडजेसेंट कौन कौन है? सी एंड डी. सो लेट्स से वी हैव सी हियर एंड देन डी. ओके, देन एम्प्टी. दो ही एडजेसेंट नोड्स हैं. देन हु आर एडजेसेंट टू बी? ओनली डी. सो डी इज ओनली द एडजेसेंट. देन adjacent to C, A, and D. Adjacent to D, it is, you can write in any order, but I am writing according to the ABCD order. A, then we have B, AB, then C, then E. Okay. And who are the neighbors of E? D and Z.
and neighbors of Z, there are two, E, you can put arrow there, I forgot to put them, that means these are the pointers. So this arrow means pointers. So E, neighbor of E is K, and who is the neighbor of K? Only Z. This is your adjacency list. Okay, so for adjacency, if you want to store some attributes of these vertices, so you can create a multi-dimensional array also that is parallel to this one. So I am just creating all these things here itself. So this is, if this is an array, then we can add multiple dimensions here as well. So I will having a multi-dimensional array. Actually this array is created separately, but I am creating it here. So pi is representing who is the parent of who, and d is the distance, and let's say I am writing color here. Okay, so let's do the initialization step of BFS. So what BFS first, you can see first what BFS does, एक्सेप्ट एस, सबका कलर वाइट कर देना है, सबकी डिस्टेंस इनफाइनाइट एंड सबके पेरेंट्स निल. ओके, सो टू अवॉइड ओवर राइटिंग आई विल जस्ट राइट द कलर्स एंड ओके, और वी कैन डू इट. सो लेट्स राइट इट. सो सबसे पहले all have infinite distance, all vertices have. So d की distance, so this is the distance for हर vertex, इसकी entry इस row में है, ठीक है. So all have infinite distance, all have white color. I am writing W for white. All have parent nil. I am just marking like that, nil. Okay. Then so S को छोड़ करके करना था मैं, ओ सॉरी आई हैव फॉरगॉट टू राइट फॉर A. ये जो पैरामीटर है, एक कॉलम मैंने A के लिए छोड़ दिया है. सो एक काम करते हैं, हम सेपरेट एरे बना लेते हैं. यहाँ पेरेंट distance color for A, B, C, then D, E, Z एंड लास्ट में K. ठीक है. सो सबका पेरेंट, सबकी डिस्टेंस इनफाइनाइट एंड कलर W. A को छोड़ देना है, A का कलर W. A का पैरामीटर्स एक्चुअली सेट ही नहीं करना थे, सो मैं छोड़ दे रहा हूँ. और बाद में लेकिन एल्गोरिथम करती है तो A के पैरामीटर्स में इसको 0 सेट कर देती है और इसको नील कर देती है. सो A का कलर आपकी एल्गोरिथम फर्स्ट राउंड में ही जो है S का कलर जो सोर्स है उसका ग्रे कर देती है. सो लेट्स पुट इट, लेट्स मार्क ग्रे हियर, ग्रे. सो आई विल राइट G फॉर ग्रे. Okay, and all are white, so W will be there. Okay, so now let's algorithm start. So algorithm will start from this vertex A, that is source, and source के distance को आपने 0 मार्क कर दिया, and इसका कलर हो गया white, सॉरी ग्रे, एंड पेरेंट नील रहेगा. एंड देन आपके जो एल्गोरिथम है सबसे पहले क्या करते हैं, एक एम्प्टी क्यू लेती है. और सो लेट्स दिस इज योर क्यू. सो क्यू इनिशियली एम्प्टी है, बट देन नेक्स्ट स्टेप में एल्गोरिथम क्या करती है, आपके जो क्यू है उसमें एंटर कर देती है एस को. ओके, और एस को एंटर कराने के बाद लूप में चली जाती है. सो नाउ जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप जो है लूप करते रहेंगे. सो नाउ व्हाट हैपन्स इन द लूप,
विद इन द लूप एल्गोरिथम ने क्या किया, जितने भी नेबर्स हैं ए के, उन सबको जो वाइट हैं, सो ए के नेबर्स कौन कौन है इस केस में, यू सी इट इज सी एंड डी, एंड आप देखेंगे सी एंड डी ऑल आर वाइट, सी एंड डी आर वाइट। सो सी और डी को एक एक करके आप क्यू में एंटर करा देते हैं। सो लेट्स से सबसे पहले सी क्यू के अंदर गया और सी का कलर हो जाएगा ग्रे। सी का पेरेंट कौन मार्क हो जाएगा, ए, क्योंकि ये ए से डिटेक्ट हुए हैं सी। एंड डी कितना हो जाएगा, सी एस की डिस्टेंस 0 थी तो इसकी डिस्टेंस +1 रहेगी, सो दैट मीन्स दिस इज बिकम्स 1। सो लेट मी टेक डिफरेंट कलर, दिस बिकम्स 1। ओके, एंड सी के बाद एक और नेबर डिटेक्ट होगा, वो है कौन, डी। सो डी भी जाएगा क्यू में, डी का कलर भी क्या हो जाएगा, ग्रे। सो डी विल बिकम ऑफ ग्रे कलर, डिस्टेंस 1 हो जाएगी एंड पेरेंट मार्क हो जाएगा ए। ओके, देन एस को एक्चुअली एल्गोरिथम ने आपका बाहर निकाल दिया था तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड एस को निकालने के बाद जब ये दो ही नेबर्स थे तो दो ही नेबर्स एंटर करेंगे, एंड देन एल्गोरिथम का ये स्टेप्स पूरी हो गई, एंड देन वो कलर ब्लैक कर देगी किसका, ए का, एस का। एस मीन्स ए, इस केस में ए है, सो ए विल बी मार्क्ड एज ब्लैक कलर। क्यों, क्योंकि अब ए प्रोसेस हो चुका है, सो ए विल बिकम ब्लैक। ठीक है, सो लेट मी राइट बी हियर, सो बी फॉर ब्लैक। ठीक है, डिस्टेंस 0 है और इसकी डिस्टेंस 1 हो गई, इसकी डिस्टेंस 1 हो गई, ये हो गए हैं ग्रे दोनों। अब आपकी एल्गोरिथम ने जैसे ही ब्लैक किया, इसके बाद अब लूप को वो चेक करेगी कि क्यू एम्प्टी है क्या, तो क्यू एम्प्टी नहीं है, और एम्प्टी नहीं है तो वो एक वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करेगी और उसे यू में रखेगी। सो यू की अब वैल्यू हो जाएगी सी, सी के बराबर। सो अब आप सी के सारे नेबर्स को देखेंगे, जो जो वाइट कलर के हैं उनको आप क्यू में एंटर करा देंगे, उनकी डिस्टेंस सेट कर देंगे, पेरेंट सेट कर देंगे। सो सी के नेबर्स कौन कौन है, सी का नेबर डी जो ऑलरेडी ब्लैक है, सॉरी ग्रे है, वाइट नहीं है, तो इसे हम क्यू में दोबारा नहीं रख सकते और ना ही इसके कोई पैरामीटर को सेट करेंगे। एंड हु इज देन ए, ए ब्लैक हो चुका है, सो ये जो है क्यू में नहीं है, वाइट कलर का नहीं है, तो सी के कोई भी नेबर क्यू में एंटर नहीं करेगा और सी के सारे नेबर्स प्रोसेस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब सी प्रोसेस हो जाएगा। सो आपकी जो लाइन है ना, सी के सारे नोड क्यू में चले गए, एक्चुअली कोई भी नहीं गया, तो लेकिन ये लूप पूरा हो गया इंटरनल, एंड देन अब हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं और इसका कलर ब्लैक कर देंगे। तो आपका जो सी वर्टेक्स है इसका कलर ग्रे से ब्लैक कर देंगे, ये और ब्लैक इंडिकेशन है कि सी प्रोसेस हो चुका है, और सी को क्यू से निकाल देंगे। अब आएगा डी का नंबर, तो अब डी के जो नेबर्स हैं, सो डी के नेबर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो डी का नेबर ए ऑलरेडी जो है आपका ब्लैक कलर में है, देन बी, बी का कलर आप देखेंगे, सो बी ही इज हियर, बी का कलर अभी वाइट है, तो बी को आप यहाँ एंटर करा देंगे और इसका कलर मार्क कर देंगे ग्रे, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये किसका नेबर है, डी, डी को हमने निकाल दिया है, सो डी को हम हटा देते हैं, और डी की जो भी डिस्टेंस थी उसमें +1 कर देना है। सो डी की डिस्टेंस 1 थी तो बी की डिस्टेंस हो जाएगी 2, है ना, आप यहाँ भी लिख सकते हैं डी की डिस्टेंस 2 हो जाएगी, सॉरी डी, अच्छा ठीक है, डी मैंने बी का पेरेंट की जगह पर डी का पेरेंट लिख दिया था। डी का पेरेंट अब कौन हो जाएगा, बी, सॉरी सब गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ, ये तो ठीक है, डी नहीं, मैं बी की एंट्री करना है, तो बी का पेरेंट हो जाएगा डी, ठीक है, और इसका कलर हो गया यहाँ ग्रे। ओके, सो बी को भी मैंने प्रोसेस कर दिया, और कौन है डी का नेबर, ई, जो कि क्यू में नहीं है, तो ई का नेबर जो है ई को भी हम क्यू में एंटर करा देंगे और इसका कलर कर देंगे ग्रे, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी की डिस्टेंस थी तो दिस विल बी एट 2 डिस्टेंस, सो डी हो गया यहाँ से आपका कलर हो गया इसका ग्रे और डिस्टेंस हो गई 2, और पेरेंट कौन हो गया डी का, सॉरी ई का, डी। ओके, सो इस तरीके से वी विल प्रोसीड। नाउ सारे नेबर्स हो गए हैं, तो अब आप डी को ब्लैक कर सकते हैं, क्योंकि डी का नेबर है तो डी कैन बी टर्न इनटू ब्लैक फ्रॉम ग्रे, और डी क्यू से हट चुका है।
सो जो जो ब्लैक हो जाएंगे वो दोबारा अब क्यू में नहीं जाएंगे, और इनके साथ इनके कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो क्यू से बाहर आएगा वो कौन आएगा, बी। जब बी बाहर आएगा तो बी के जितने भी नेबर्स हैं आप उसे क्यू में एंटर कराने की कोशिश करेंगे। तो बी का नेबर एक ही था, डी, जो ऑलरेडी ब्लैक है। वाइट नेबर्स को हम एंटर कराते हैं, तो कोई भी नेबर की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी और बी आपका ब्लैक कलर में हो जाएगा अब। सो बी का कलर अब ग्रे से ब्लैक हो जाएगा और प्रोसेस हो जाएगा बी। सो आप बी के कलर को यहाँ पर ग्रे से ब्लैक कर सकते हैं मार्क। ठीक है, आपको ये मल्टीपल स्टेप्स में टेबल दिखाना पड़ेगी, हर स्टेप में से चेंज करते हुए दिखाना पड़ेगा, बट मैं यहीं पर कर रहा हूँ टू सेव द टाइम। ओके, सो बी भी ब्लैक हो गया। बी के ब्लैक होने के बाद जो चूंकि ये भी क्यू से बाहर है, अब ई आएगा। तो ई के जो नेबर्स हैं, जो वाइट नेबर्स हैं, वो जाएंगे क्यू में। तो ई के नेबर्स में पहले ई को निकाल दीजिए यहाँ से, और जो नेबर्स हैं ई का नेबर कौन कौन है, डी एंड जेड। तो डी ऑलरेडी ब्लैक कलर है लेकिन जेड नहीं है, तो जेड विल एंटर इनटू द क्यू और जेड का कलर हो जाएगा ग्रे। और जेड का पेरेंट कौन बन जाएगा, ई। सो पेरेंट ऑफ जेड इज ई, और डिस्टेंस जेड की कितनी थी, 1 2 3 थी, तो आप ना ई की डिस्टेंस थी 2, तो जेड की डिस्टेंस हो जाएगी 3। सो डिस्टेंस टू द जेड आप कर दीजिए, जेड की इनफाइनाइट की जगह पे हो गई 3। ओके, नाउ जेड का कलर ग्रे हो चुका है। ओके, और जेड के अब आपका काम क्या है, नेबर्स। अब आप अगली बार जब प्रोसेस करने आएंगे, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो आप जेड को निकालते हैं और अब जेड के जो नेबर्स हैं, वट एवर नेबर्स आर यू आर हैविंग, वो एंड क्यू में जाएंगे। तो जेड का नेबर 2 हैं, ई एंड ई ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है, ई का कलर अब ब्लैक हो जाएगा क्योंकि सारे प्रोसेस हो चुके हैं। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, जेड के जो नेबर्स हैं, सो ई एंड के दो नेबर्स हैं, एक ऑलरेडी ब्लैक कलर में है, ये वाइट कलर में है, तो ओनली के विल एंटर इनटू द क्यू। सो के को ही आप क्यू में एंटर कराएंगे और के का कलर आप क्या कर देंगे, ग्रे। इसका पेरेंट मार्क कौन हो जाएगा, जेड। डिस्टेंस, जेड की डिस्टेंस में एक ऐड कर देंगे, तो जेड की डिस्टेंस 3 थी, तो इसकी डिस्टेंस 4 हो जाएगी। ओके, और अब आपका जेड जो है ये भी ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस हो गया है, क्योंकि इसके सारे नेबर्स क्यू में चले गए हैं जो वाइट थे। एंड नाउ अब आपके क्यू में आप आएंगे, देखते हैं क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो आप के को निकालेंगे। के को निकालेंगे तो के को निकालने के बाद आप इसके नेबर्स को क्यू में एंटर कराएंगे जो वाइट हैं। सो के का एक ही नेबर है जेड जो ऑलरेडी ब्लैक है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड सो दैट आपकी के की प्रोसेसिंग पूरी हो गई। अब आप के को भी ब्लैक मार्क कर देंगे, के को ब्लैक मार्क कप कर दीजिए और प्रोसेस कर दीजिए। और अब इसके बाद क्योंकि क्यू में कोई नहीं गया था, तो अब आपकी क्यू एम्प्टी हो गई, और क्यू एम्प्टी हो गई दैट मीन्स योर एल्गोरिथम विल स्टॉप। सो अब आपका ये जो टेबल है, इससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि सो आपकी फाइनली ये टेबल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो हियर यू हैव वर्टेक्स, सो वर्टेक्स में आपका ए बी सी देन डी ई जेड के, डी ई जेड एंड के, ये तो वर्टेक्स हो गए। नाउ ये इसका पेरेंट है, पेरेंट की एंट्री आपको टेबल में मिल जाएगी। सो जैसे ए वाज द सोर्स, तो ए का पेरेंट कोई नहीं था, ए की डिस्टेंस और कलर। तो अब कलर तो आपका सबका ब्लैक हो चुका है, तो आई कैन राइट बी सेफली, फाइनल जो वैल्यूज हैं आपकी, है ना। मेन चीज़ है हमारा डी और जो पेरेंट कौन था, सो वो हमें इन एक्चुअली रखना है यहाँ पर। सो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि अब सब ओवरराइट होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। ए के पेरेंट, बी का पेरेंट कौन था, बी का पेरेंट था डी, बी का पेरेंट था डी और डिस्टेंस थी 2, है ना, 2 डिस्टेंस पर था ये ए से। और डी और सी का पेरेंट ए था, डी और सी,
डी और सी दोनों का पेरेंट ए था और दोनों की डिस्टेंस 1 1 थी। ओके, एंड ई का पेरेंट है डी, सो पेरेंट ऑफ ई was D and distance 2। ठीक है, एंड Z का पेरेंट E, सो Z का पेरेंट है E, डिस्टेंस 3, और K का पेरेंट था Z, K का पेरेंट है Z और डिस्टेंस हो गई 4। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इन्फॉर्मेशन विल अलाउ यू टू रिक्रिएट द BFS ट्री। सो हम ऐसे बना सकते हैं, मैं इसी से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपकी एल्गोरिथम एक्चुअली मेंटेन दिस स्ट्रक्चर दैट विल हेल्प यू टू मार्क व्हाट इज द DFS ट्री। मैं इसी से आपको DFS ट्री बना के दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले A वाज द सोर्स, ओके, देन A के 2 चाइल्ड्स थे, कौन कौन, जिनके पेरेंट्स यहाँ A एंटर है, आप बोलेंगे C एंड D, सो C एंड D, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी थी, 1 एंड 1। सो सबसे पहले A से आपने C और D को डिटेक्ट किया था, तो आप ब्रेड्थ वाइज चल रहे हैं। देन C के C किस का जो है पेरेंट मार्क है, C किसी का पेरेंट मार्क नहीं है, ओके। D जो है पेरेंट है किस किस का, B का एंड E का, सो D इज द पेरेंट ऑफ B एंड E। आप टेबल में भी देख सकते हैं, B और E का पेरेंट, E का पेरेंट भी D है और B का भी पेरेंट D है। तो आपको पेरेंट्स लिखने हैं नोट्स के, और उसके बेस पर उन्हें अटैच कर देना है, ठीक है, B एंड E, और इनकी डिस्टेंस चूँकि 1 1 ज़्यादा होगी, सो 2 एंड 2, ओके। एंड Z का पेरेंट कौन है, E, तो Z को आप E के नीचे अटैच कर दीजिए और डिस्टेंस 3 कर दीजिए। एंड K का पेरेंट Z, सॉरी K यहाँ आएगा और डिस्टेंस हो गई 4। सो ये जो ट्री है, दिस इज योर BFS ट्री, दिस इज योर BFS ट्री। तो आप देख सकते हैं एल्गोरिथम ने पहले इन दोनों को डिटेक्ट किया, फिर इन दोनों को डिटेक्ट किया है, फिर इसे डिटेक्ट किया है, फिर इसे डिटेक्ट किया है। तो ब्रेड्थ वाइज वो एल्गोरिथम आपकी आगे बढ़ती है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो सबसे पहले आपकी एल्गोरिथम में ये जो स्टेप्स हैं, इनको अगर देखें तो ये जो लाइन्स हैं, ये सारी की सारी फॉर एवरी वर्टेक्स एक बार चलती है, हर वर्टेक्स के लिए। अगर S को थोड़ा देर के लिए छोड़ दें तो ये एल्गोरिथम के इस पोर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ V, है ना। ये जो पोर्शन है, दिस इज ऑर्डर ऑफ V। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये दो 4 लाइन्स हैं, ये तो ये कितने टाइम में पूरी हो जाएंगी, कांस्टेंट टाइम में, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम। तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्यू क्रिएट करना कांस्टेंट टाइम में। लेकिन अब आप जब इस लाइन पर आते हैं तो ये जो लूप है, ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप आप देख सकते हैं, ये लूप क्या कर रहा है, विद इन दिस लूप व्हाट यू आर डूइंग, फॉर एवरी वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के नेबर को आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर उसे क्यू में एंटर करा दे रहे हैं। सो ये लूप कितने बार चलेगा, और ध्यान रखना है क्यू में जो वर्टेक्स है एक बार एंटर करती है, एवरी वर्टेक्स एंटर इनटू द क्यू ओनली वंस। आप एक एज ऑब्जर्व करते हैं वर्टेक्स की, ये लाइन देखिए G डॉट एडजेसेंट B। सो ये जो लाइन है, ये एक बार आप, दैट मीन्स हर वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आप रफली अगर देखेंगे, सो वी आर एक्सप्लोरिंग ईच ओनली वन एज एवरी टाइम, ठीक है। एक बार में एक एज को ऑब्जर्व करते हैं ना इस लाइन में, इस लाइन में। और आप देख रहे हैं कि हर वर्टेक्स के एडजेसेंट को हम देखते हैं, तो हर वर्टेक्स के एडजेसेंट वो वर्टेक्स को हम एक बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो रफली अगर देखें तो आप इसमें हर वर्टेक्स को, हर एज को एक बार प्रोसेस कर रहे हैं,
हर एज को एक बार प्रोसेस कर रहे हैं. So what will be the time complexity? That is written here. Okay. सो इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन में एक ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम लगता है, तो आपका हर वर्टेक्स एक बार क्यू में जाती है ना. हर वर्टेक्स एक बार क्यू में जाती है, तो ऑर्डर ऑफ वी टाइम आपका क्यू में एंटर करने में और निकालने में लग गया. एंटर करने में भी उतना ही टाइम लगता है कांस्टेंट टाइम, और एक्सट्रैक्ट करने में भी कांस्टेंट टाइम लगता है. तो आप कहेंगे 2 कांस्टेंट टाइम लग गया हर वर्टेक्स के लिए, तो 2 कांस्टेंट टाइम का कोई मतलब नहीं होता है. तो हर वर्टेक्स को आप एक बार प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये जो टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ वी टाइम हो गया क्यू में एंटर कराने का और एक्सट्रैक्ट करने का. और जब आप क्यू में एंटर कराते हो तो एंटर कराते समय एक वर्टेक्स के सारे नेबर्स को एंटर कराते हो. तो जब आप हर वर्टेक्स के लिए कर रहे हो तो एक वर्टेक्स आपने लिए, उसके सारे नेबर्स को आप एक्सप्लोर कैसे करेंगे, उससे एडजेसेंट जो एज जा रही है उसको लिखेंगे. तो आप क्या कर रहे हैं, हर वर्टेक्स के एडजेसेंट जो एज है उसे एक बार देख रहे हैं. ठीक है. डायरेक्टेड ग्राफ में आप 2 बार देख रहे हैं क्योंकि दूसरे एंड से भी कई बार देखते हैं. सो आपकी जो वर्टेक्स की एजेस की जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो रही है, कितने टाइम हो रही है, हर एज को आप एक्चुअली 2 बार देख रहे हो, है ना. कैसे, लेट मी कम बैक टू द डायग्राम. जैसे अगर हम इस ट्री की बात करें तो जब आप एक बार तो ए से सारे ऑब्जर्व करते हो, इस वर्टेक्स एज को आपने प्रोसेस किया, फिर इस एज को प्रोसेस किया, तभी तो आपने क्या किया था, ए के नेबर्स को सी को और डी को एंटर कराया था. जब आप सी वर्टेक्स पर आते हो तब सी के नेबर्स को आप जो है ऑब्जर्व करके क्यू में उनके डालने की कोशिश करते हो. तो सी इस वर्टेक्स को आप एज को फिर से देख रहे हो, आप इस एज को फिर से देख रहे हो. सो हर अनडायरेक्टेड ग्राफ में हर एज को आप 2 बार देख रहे हो, एक बार इस एंड से, एक बार इस एंड से. ठीक है. सो अगर इमेजिन करिए ग्राफ डायरेक्टेड होता तो आप एक एज को एक ही बार देखते, है ना, एक एज को एक बार देखते. तो ये एक्चुअली एक एज दिख रही है, बट दीज आर द टू इक्वलेंट टू 2 एजेस, ए टू सी, सी टू ए. सो आप कह सकते हैं कि हम हर एज को एक बार ही प्रोसेस कर रहे हैं. सो हर एज को प्रोसेस करने में आपको कांस्टेंट टाइम लग रहा है, क्योंकि हर एज को देखने में क्या लगेगा, सी का नेबर ए है ये चेक करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा. सो हर एज को आप एक बार प्रोसेस कर रहे हैं. सो एज की भी प्रोसेसिंग ऑर्डर ऑफ ई टाइम हो रही है, स्कैन कर रहे हैं एक्चुअली आप इसमें, है ना. सो है ना, होना तो चाहिए 2 इंटू ई, क्योंकि 2 बार आप देख रहे हो, लेकिन 2 कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है. सो रफली हम आ जाते हैं, तो आप हर वर्टेक्स को एक बार प्रोसेस कर रहे हो, देन हर एज को एक बार प्रोसेस कर रहे हो. तो जो टोटल टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ वी प्लस ऑर्डर ऑफ ई हो जाएगा. ओके. सो द रनिंग टाइम ऑफ BFS एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ वी प्लस ऑर्डर ऑफ ई. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको बोलते हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी BFS इज बिग O V प्लस ई. ठीक है. सो दिस इज BFS एल्गोरिथम. हाँ, आप कोई डाउट है तो आप बताइए. नहीं है, अच्छा. सो स्टॉप करें या कंटिन्यू करें, मुझे एक एल्गोरिथम और डिस्कस करनी है, DFS. कैपेसिटी है, so BFS is complete.